Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing well. So today we are going to finish our miscellaneous exercise of chapter number 1, which is SAT. Okay. So without wasting the time, let's start. So in my last video I have discussed till question number 7. Okay, 6. And I told you that the remaining question from question number 7 till question number 12. These questions are homework for you. Okay. If you guys are not capable to solve it, then we will discuss it in next Google Meet. So today I am going to discuss the word problem, okay, which is from question number 13 to question number 16, and we will solve it by the help of Venn diagram. Okay. So question number 13. In question number 13, first we will read it. In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea, 225 taking coffee, and 100 were taking both tea and coffee. Okay. Find how many students were taking neither tea nor coffee. So हमें ये स्ट्रेंथ निकालनी है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ना कि कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, और ना ही टी ले रहे हैं, ठीक है. ओके. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर हैविंग कॉफ़ी, है ना, टी इज़ 150. इट हैज़ बीन गिवन. नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग कॉफ़ी, ये कितना दिया बेटा हमें यहाँ पे, 225. ओके, 225. एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग कॉफ़ी एंड टी, एंड मीन्स इंटरसेक्शन. सो नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग कॉफ़ी एंड टी, ठीक है, आर कितने हैं ऐसे, 100. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. Find how many students were taking neither coffee nor tea. It means what does we find? We find not C intersection not T. ठीक है. ये कितना होगा ये मुझे पता करना है ना. नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग neither coffee nor tea, जो ना तो कॉफ़ी ले रहे हैं ना तो टी ले रहे हैं. सो फर्स्ट वी विल फाइंड इट विद द फार्मूला. ओके, व्हाट इज द फार्मूला? एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू, सॉरी इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होगा बेटा यहाँ पे. एन ऑफ सी यूनियन टी equal to n of c plus n of t minus n of c intersection t. Okay, now apply the formula here. N of c, number of people who are liking coffee, 225. Number of people who are having tea, 100, minus number of people who are having both coffee as well as tea, ये भी 100 है, ठीक है. अच्छा, टी वाले कितने, 150. So 225 plus 150 minus 100, that is 50, and this is a total of 275. So 275 students are those who are having coffee as well as or tea, है ना. At least one of them, coffee और tea में से कम एक चीज़ तो ले ही रहे हैं वो लोग. But we have to find out the number of people who are having neither coffee nor tea. So number of people not having कॉफ़ी एंड टी, ठीक है. तो ये कितने हो जाएंगे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, सर्वे कितने पे हो रहा है, 600 पे ना. तो 600 में से हम वो अमाउंट हटा देंगे जो एटलीस्ट एक चीज़ तो ले ही रहे हैं. व्हाट डज इट मीन, 275, ये किसकी वैल्यू है, एन ऑफ सी यूनियन टी. सी यूनियन टी मीन्स इसमें वो सारे लोग आ जा रहे हैं जो कॉफ़ी भी ले रहे हैं और टी भी ले रहे हैं. दिस इज़ द यूनियन बेटा. बट हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट हैविंग कॉफ़ी एज वेल एज टी, है ना, जो ना कि कॉफ़ी ले रहे हैं ना टी ले रहे हैं. तो 600 है टोटल. 600 में से हम माइनस कर देंगे 275 को. दिस इज़ द यूनियन, ठीक है, बिकॉज दीज पीपल आर हैविंग कॉफ़ी एज वेल एज टी. कम से कम एक चीज़ वो ले ही रहे हैं, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम दे आर टेकिंग. सो योर आंसर विल बी 10 minus 5 that is 5, 9 minus 7 that is 2, okay, 6 minus 2 that is 4, ठीक है. 375, 25 is your answer, ठीक है. 325 people are those who are neither taking coffee nor taking tea. Okay, now we will solve this question by the help of Venn diagram. So this is representing the universal set U. Now there are two sets. Let us consider this is denoting the coffee and this closed circle is denoting the tea. Now see, first the intersection of C and T is 100. So first we will fit the intersectional part. Now the number of student having tea, 150. So out of 150, 100 are in their intersectional part, so the remaining will be only tea, है ना. Number of student who are having coffee, 225.
सो 225 में से 100 तो इंटरसेक्शन में गए, तो यहाँ कितना बचेगा 125. ओके, नाउ लिसन, जो सर्वे हो रहा है, सर्वे कितने पर हो रहा है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स है बेटा 600. दिस इज दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिवर्सल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट. सो आउट ऑफ 600 कॉफ़ी, टी और बोथ वाले तो ये हो गए, तो इनको हमने माइनस कर देना है. ओके, सो 600 माइनस 125 प्लस 100 प्लस 50. ओके, सो 600 माइनस this will be 125 plus 150. okay, 600 minus 200. okay, 200 50 75. so 275 माइनस करेंगे आप 600 में से, ठीक है, तो कितना बचेगा 325, है ना. सो 325 का रीजन कौन सा है, ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है, ये वो रीजन है जिसमें ना तो कॉफ़ी, ठीक है, ना तो कॉफ़ी ले रहे हैं वो बच्चे और ना ही चाय ले रहे हैं, ठीक है ना. तो दोनों तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एज वेल एज वेन डायग्राम एज वेल एज फ्रॉम द फार्मूला. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is question number 14. In a group of students, 100 students know Hindi, 50 know English and 25 know both. So whatever information we have given, first we will write it. Question number 14. Number of people, ठीक है, in a group of students, 100 people knows Hindi. So number of people who knows Hindi are 100. Okay. 50 know English. Number of people who know English are 50. Okay. And 25 knows both, means number of people who knows Hindi and English, है ना. both means Hindi and English, तो ऐसे कितने हैं 25 people are such. okay, so each of the student knows either Hindi or English. Now it is given that each of the student knows either Hindi or English, मतलब at least they are knowing one language. okay, at least one of them. if you have choice, है ना, Hindi or English, तो some are having the knowledge of both the languages, but some are having only one language knowledge, है ना, but at least one language they are having. ठीक है, कम से कम एक लैंग्वेज तो उनके पास है ही है, उसको तो वो यूज़ कर ही रहे हैं, है ना. कुछ ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, बट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट देयर यूनियन. आ रही बात समझ में. सो बनाइए एक वेन डायग्राम. लेट दिस डिनोटिंग यूनिवर्सल सेट. दिस इज द कॉलम फॉर हिंदी, दिस इज द कॉलम फॉर इंग्लिश. नाउ सी द इंटरसेक्शनल पार्ट कवर 25 स्टूडेंट्स. ओके, नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 100. आउट ऑफ 100 25 इज लेस बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट. सो 100 minus 25, that is 75 will cover only Hindi. Now number of people who are having the knowledge of English is 50. Out of 50, 25 less because this portion is covered with the intersectional part. So the remaining part will be only E. So only E में कितने होंगे 50 minus 25, that is 25. Now you can easily find the union. So the union means N of H union E will be 75 plus 25 plus 25. Okay. So 75 plus 25, that is 100 plus 25, that is 125, है ना. So the total number of students in the group are 125. Okay, pause the video and take the screenshot of it. Okay, now the next question. Question number 15. So the question number 15, in a survey of 60 people, it was found that 25 people were read newspaper as. So first we will write the information which we have given. Okay, so number of people who are reading newspaper H. Okay, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H.
सो कितने हैं ऐसे 25. एंड 26 रीड न्यूज़पेपर टी. न्यूज़पेपर टी 26 आर देयर. 26 रीड न्यूज़पेपर आई. 26 रीड न्यूज़पेपर आई. ओके. 9 रीड बोथ एच एंड आई. 9 रीड बोथ एच एंड आई. ओके. 11 read both H and T. 11 read both H and T. And 8 read both T and I. 8 read both T and I. 8 read both T and I. 3 read all 3 newspapers. So 3 are the intersection of 3 part, H, I and T. Such are 3 people. So what we have to find out, the very first, the number of people who read at least one newspaper. The number of people who read at least one newspaper. At least one newspaper. Okay. And the second one, the number of people who read exactly one newspaper. The number of people who read exactly one newspaper. Okay, one newspaper. Now see here, the information which we have given is, there is a survey. ठीक है, there is a survey of 60 people. 60 लोगों का सर्वे हो रहा है बेटा. ठीक है. तो सर्वे में हो क्या रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग रीडिंग न्यूज़पेपर एच इज़ 25. नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर टी वर 26. नंबर ऑफ पीपल हु रीडिंग न्यूज़पेपर आई 26. नंबर ऑफ पीपल हु रीडिंग न्यूज़पेपर एच एंड आई, है ना. सो इंटरसेक्शन है, 9 पीपल आर सच. नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर एच एंड टी 11. नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर टी एंड आई 8. एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग ऑल 3 न्यूज़पेपर 3. सो पहले केस में तो हमें ये निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर. वेन एवर यू आर द क्वेश्चन, द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट वन ऑफ देम. सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द union of all such sets. So in this first case we have to find out the union of all these 3 sets. All these 3 sets means H, T and I, which is representing the newspaper S, newspaper T and newspaper I. So first case we will find the union of all such 3 sets who are having the newspaper H and T and I, है ना. इन तीनों का यूनियन लेना मुझे. And in second case, the number of people who read exactly one newspaper. It means we are interested to find the number of people who are having only one newspaper. केवल एक न्यूज़पेपर. Exactly one का मतलब तो 1, ना तो 2 ना तो 3. ओके. सो देखिए इसको with the help of Venn diagram कितना ईजी हो जाएगा ये, है ना. Now see here, this is the universal set, sorry. This is one newspaper, this is second newspaper set and this is the third newspaper set. Let it be H, let it be I and let it be T. ठीक है, representing 3 individual newspapers. Now see very first, हम सबसे पहले फिल किसको करते हैं. जब हमारे पास 2 सेट थे तो हमने उनके इंटरसेक्शन को सबसे पहले फिल किया. यहाँ पे 3 सेट हैं तो उन तीनों के इंटरसेक्शन को सबसे पहले फिल करेंगे. एंड विच अमाउंट इज गिवन एज 3. सो तीनों का इंटरसेक्शनल एरिया कौन सा है, ये वाला. ध्यान से देखो सभी. दिस एरिया इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, है ना. अगर मैं इसको लूँगा तो इन दोनों का होगा, वो तीसरा छूट जाएगा. इसको बोलूँगा तो इन दोनों का होगा, ये छूट जाएगा. और इस एरिया को बोलूँगा तो H और T का होगा, ये छूट जाएगा. समझ रहे हो बात को. तो केवल ये पोर्शन ऐसा है जो कवर कर रहा है तीनों के इंटरसेक्शन को. और तीनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं, 3 इज देयर. अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन 2 सेट्स का. 2 सेट मीन्स जैसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ H एंड I. सो हाउ मैनी पीपल आर देयर, 9. दिस इज H, दिस इज I, सॉरी दिस इज H, दिस इज I. तो इनके इंटरसेक्शन में टोटल है 9. बट आउट ऑफ 9 3 तो क्या है, 3 ऐसे हैं जो इसके भी इंटरसेक्शन में है, जो T के भी इंटरसेक्शन में है. तो रिमेनिंग 6 विल कवर हियर. नाउ सी नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर H एंड T 11. दिस इज H, दिस इज T. तो इनका इंटरसेक्शन है 11. लेकिन 11 में से 3 तो ऑलरेडी जा चुके हैं.
तो बेटा यहाँ कितना बचेगा 8, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर टी एंड आई कितने हैं बेटा 8, दिस इज टी एंड दिस इज आई, तो इनका इंटरसेक्शन टोटल 8 है, बट 3 ऑलरेडी मैंशन, सो 8 - 3 फिर 5 विल कवर हियर, ओके। अब इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन फिनिश, दो का इंटरसेक्शन फिनिश, अब किनको फिलअप करना है इन, ठीक है। सो देखिए नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर एज 25, सो एच विल कवर ऑल दिस एरिया, लिसन केयरफुली, एच जो है ये पूरा एरिया कवर कर रहा है बेटा, सो इस पूरे एरिया में ये फिल हो चुका है, ये फिल हो चुका है, ये फिल हो चुका है, केवल यही तो बचा है अब, ठीक है। सो टोटल कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर एज 25, तो बेटा 25 में से माइनस कर दो 6 + 3 + 8, ओके। सो 25 माइनस 6 + 3 9, 9 + 8 17, ओके 17, 25 - 17 8 आई थिंक, है ना, हाँ 8। सो 8 पीपल आर दोज हु आर रीडिंग ओनली न्यूज़पेपर एच, केवल एच वाले। और बेटा जोड़ लीजिए, सबको कंबाइन कर लीजिए, 8 + 6 14, 14 + 3 17, 17 + 8 25, तो टोटल तो 25 ही आ रहा है ना। इन सिमिलर केस सी, नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर टी कितने हैं ऐसे 26, कितने हैं 26। नाउ सी, ये रहा टी का कॉलम, तो 26 में ये देखिए टी का पूरा सर्कल देखिए जो टी को कवर कर रहा है, तो 26 में 5, 3 और 8 तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं अपनी अपनी क्या बोलते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे, सो ओनली टी को ही हमने फिल करना है। सो आप करेंगे क्या, 26 में से माइनस कर दो 8, 3, 5 को, 8 + 3 + 5, so 26 minus 5 + 3 8, 8 8 16, 26 - 16 that is 10, so 10 people are those who are reading only टी, only newspaper टी, है ना, ये ऐसे पीपल हैं जो केवल न्यूज़पेपर टी को रीड कर रहे हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो चेक 10 + 8 18, 18 + 3 21, 21 + 5 26, तो देखो नंबर ऑफ पीपल टोटल टी के अंदर कितने हैं 26। इन सिमिलर मैनर वी कैन फिल द सेट आई। नाउ सी, नंबर ऑफ पीपल इन सेट आई 26, out of 26 you have to subtract 6 + 3 + 5, 6 + 3 + 5, so 26, this amount will is the total of 6 + 3 + 5 ना, 6 3 5, 6 + 3 9, 9 + 5 that is 14, है ना, तो 14, 26 - 14 that is 12, है ना। सो 12 पीपल आर दोज हु आर रीडिंग ओनली न्यूज़पेपर आई, है ना, ओनली आई वाले एरिया में कितने आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से हम सारे फिल कर सकते हैं। नाउ द आंसर ऑफ फर्स्ट वन, पहला क्या पूछा आपसे, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मीन्स ऐसे लोगों का कैलकुलेशन करिए जो कम से कम एक पेपर पढ़ ही रहे, तो कम से कम एक पेपर पढ़ने वाले में ये सारे के सारे आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ये भी आएगा, 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 ये भी आएगा और ये भी आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई बंदा 2 या 3 भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना, ठीक है, तो कम से कम एक तो ऑलरेडी पढ़ ही रहा है, एक के अलावा अगर वो 2 पढ़े 3 पढ़े इससे हमारा कोई इशू ही नहीं है, बट ही इज रीडिंग एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। सो एटलीस्ट वन में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर means sum of all these figures, यानी 8 + 6 + 3 + 8, 8 6 3 8 + 12 + 5 12 5 + 10, तो ऐड करिए इसको, 8 6 14, ठीक है, 14 और 3 17 17, इसके बाद 25 25 तो हो गया यहाँ तक, है ना, 25 17 17 + 10 25 प्लस कितना हो गया 27, तो ये हो गया बेटा 52। सो 52 पीपल आर दोज हु आर रीडिंग एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। नाउ सी द सेकेंड वन, सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मीन्स एग्जैक्ट वन, एक से 2 नहीं 3 नहीं, केवल और केवल एक न्यूज़पेपर वाला। सो बेटा ओनली वन वाला देखिए तो एरिया कौन सा है, ये और ये पोर्शन कौन सा है, ये है ओनली एच, ये कौन सा है ओनली न्यूज़पेपर एच, ये कौन सा पोर्शन है ओनली टी, और ये कौन सा पोर्शन था ओनली आई, है ना। चेक कर लो, ये जो इधर का पोर्शन है 8, ये वो पीपल हैं जो ओनली न्यूज़पेपर एच को ही रीड कर रहे हैं, एंड दिस पोर्शन इज इंडिकेटिंग द पीपल हु आर रीडिंग ओनली न्यूज़पेपर आई।
एंड दिस पोर्शन इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग ओनली न्यूज़पेपर टी। सो हमें चाहिए ओनली वन न्यूज़पेपर वाला ना, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर जो रीड कर रहे हैं वो वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो वो कैसे हो जाएगा, 8 + 12 + 10, है ना, क्योंकि ये जितने भी हैं बाकी, ये कोई 2 वाले हैं कोई 3 वाला, ये तीनों का कंबाइंड है, ये इन दोनों का कंबाइंड, 5 इन दोनों का कंबाइंड, 8 इन दोनों का कंबाइंड, तो इनको तो ले ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर में कौन सा एरिया आएगा, 8 + 12 + 10। सो कितना हो गया, 12 + 8 दैट इज 20 एंड +10 दैट इज 30, है ना। सो 30 पीपल आर दोज हु आर रीडिंग ओनली न्यूज़पेपर, ओनली वन न्यूज़पेपर, हो ना, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so now the last question. Now the last question is, in a survey it was found that 21 people like product A, 26 like product B and 29 like product C. If 14 people like product A and B, 12 like product C and A, 14 like product B and C and 8 like all three products, find how many like product C only. तो बेटा फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, एक कॉलम एक वेन डायग्राम से ऐसा बनाएंगे हम, ठीक है। दिस इज इंडिकेटिंग यूनिवर्सल सेट। अब कितने सेट हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। सो लेट अस, दिस इज इंडिकेटिंग प्रोडक्ट ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी, है ना। अब सबसे पहले देखिए कि तीनों का इंटरसेक्शन क्या है। देखो 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, 8 ऐसे हैं जो इन तीनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, है ना, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो इसका मतलब 8 तो यहाँ फिल हो जाएगा इन तीनों के इंटरसेक्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 8 से पहले का बढ़िए, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। सो प्रोडक्ट बी और सी को लाइक करने वाले कितने हैं, 14 हैं। 14 में से तो 8 ऑलरेडी कवर हो ही चुका है ना। देखिए ना, अगर 14 बी और सी को आप देते हो तो बी और सी में देखो 8 तो ऑलरेडी कवर है। इस एरिया में कितना आएगा, 14 - 8, यानी 14 - 8 करेंगे तो कितना, 6, है ना। नाउ सी नेक्स्ट, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। प्रोडक्ट सी और ए को लाइक करने वाले कितने पीपल हैं, 12, है ना। 12 लोग ऐसे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए और सी को लाइक कर रहे हैं। तो ए और सी के इंटरसेक्शन में आना चाहिए ना 12, बट 8 तो ऑलरेडी फिल हो चुका है और ये पूरा ही एरिया है ए और सी का, ध्यान से देखें अगर, है ना, ये पूरा एरिया है ए और सी का। तो 8 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब 12 में से 8 कम कर दो, कितने बचे, 4। तो इस वैकेंसी के लिए 4 ही आएगा। नेक्स्ट, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। सो ए और बी के लिए कितने हैं, 14 पीपल। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, आउट ऑफ 14 8 ऑलरेडी मेंशन, 8 मेंशन है, तो अब बचेगा कितना, 6, है ना, 8 + 6 14। नाउ सी नेक्स्ट, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले जो पीपल हैं वो कितने हैं, 21। 21 में से तुमने कितना फिल कर दिया, 6 + 4 10, 10 + 8 18। 18 तो ऑलरेडी फिट हो चुका है आउट ऑफ 21, तो बचा कितना, 3। सो ये आ जाएगा 3, है ना। अब आगे बढ़िए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले हैं 26 लोग। आउट ऑफ 26 यू हैव कवर्ड 6, 8 एंड 6, बिकॉज ये भी तो सेट बी में आ रहा है। सो 6 + 6 12, 12 + 8 20। तो कितने हैं टोटल, 26। 26 में से 20 कवर हो गया, तो इस एरिया के लिए बचेगा केवल और केवल 6। नाउ सी, 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। सो प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले पीपल कितने हैं, प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले पीपल हैं 29। सो 29 में कितना कवर कर चुके हो तुम, इसके ग्राफ को देखिए ना, इसके सर्किल को देखिए। तो 29 में देखिए 6 + 4 10, 10 + 8 18। सो 29 में से 18 तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना, तो 18 कवर हो चुका है, तो बचेगा कितना इस पोर्शन के लिए, 11, है ना। ऐड कर लो टोटल, देखिए 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 11 कितना, 29, और 29 ही टोटल है किसके लिए, सी के लिए। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है। हमें फाइंड करना था कि हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, है ना, केवल और केवल सी, ओनली सी। अगर मैं इस पोर्शन को इंक्लूड करूं तो देखो ये सी के साथ बी वाला है,
इसको ऐड करूं तो सी के साथ ए वाला है, और ये तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि इन तीनों का है। सो ओनली सी वाला रीजन कौन सा है, ये है ना, ओनली सी वाला रीजन कौन सा है, ये पोर्शन है, ठीक है। दिस पोर्शन इज इंडिकेटिंग ओनली सी, ठीक है। जहाँ जहाँ मेरा पेन जा रहा है ध्यान से देखेंगे सभी, दिस पोर्शन इज इंडिकेटिंग ओनली सी पार्ट, है ना, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इस पोर्शन में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 11। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 पीपल आर दोज हु आर हु लाइक्स ओनली प्रोडक्ट सी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। So dear student, this is all from today's video lecture, ठीक है। Almost this exercise is done. In next Google Meet and then next video lecture, we will discuss the next chapter which is matrix and matrix not matrix, which is trigonometric relation and function, है ना। So the next chapter is relation and function, and we will discuss it in next Google Meet, okay, and next video lecture. Till then, bye bye, take care and stay safe.